Bismillahirrahmanirrahim. Respected parents and students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hope you are all fine. Welcome to online classes January 2021. It's our history class, lecture number 7, chapter number 5. Before starting lecture, let's join your hand and say the prayer. Rabbi zidni ilma. Allah mere ilm mein izafa farma. Let's start our lecture. In this lecture, we will revise the whole unit of the chapter number 5, Mughal Empire Ascendancy of the British. We will summarize the whole chapter in this lecture. Let's start our lecture. In the first lecture, we discussed about the entrance of the Ahmad Shah Abdali in the Indian subcontinent. Who was Ahmad Shah Abdali? Ahmad Shah Abdali was a general of Nadir Shah Durrani, and he became the king of Afghanistan. After that, Hazrat Shah Waliullah convinced the Ahmad Shah Abdali to attack against the Marathas. Why attack against the Marathas? Because Marathas and Sikh became powerful in the Indian subcontinent, and that was dangerous for the Islam and also for the Muslims. So that's why Ahmad Shah Abdali attacked against the Marathas, and battle was fought between the Marathas and Ahmad Shah Abdali in which AD? In 1761 AD. So the third battle of Panipat was fought in 1761 AD. The next point that we discussed in the last lectures, that was the battle of the Buxar. We discussed about the consequences about the battle of the Buxar, in which consequences battle of Buxar was fought. First we discussed that after the battle of Plassey, the situation was disbalanced between the puppet rulers of the British and British East India Company. British East India Company appointed his puppet ruler in the Bengal. Mir Jafar was appointed, but Mir Jafar was not fulfill all the demands of the British East India Company. So that's why he deposed the Mir Jafar and appointed his son-in-law Mir Qasim as the governor of the Bengal. But again, the relations between the East India Company and the Mir Qasim was not balanced. Why? Because that was very difficult for the Mir Qasim to fulfill all the demands and wishes of the British East India Company. So that's why he reappointed the Mir Jafar as the governor of the Bengal and dismissed the Mir Qasim. In that time, Mir Qasim decided to launch an attack against the British East India Company, and then Battle of Buxar was fought. Mir Qasim make an alliance with the Nawab of Oudh and Shah Alam II and start the war against the British East India Company. But at the end of the war, British East India Company win the Battle of the Buxar. The next point that was discussed in the last lecture, that was we discussed about the last Mughal emperors, periods of the last Mughal emperors, in which the Bahadur Shah Zafar and Akbar Shah II, that was the prominent last two Mughal emperors. Next we discussed about how Sikh power established in the Punjab and in NWFP. And after that we discussed about the famous Muslim general Tipu Sultan and the Hyder Ali. And after that we discussed about the different movements started in the Indian subcontinent to unite the Muslims and to follow the basic principles of the Islam, and that movement started by Hazrat Shah Waliullah, Sayyid Ahmad Shaheed Jihad movement, Haji Shariatullah movement, etc. These movements started in the Indian subcontinents. After that we discussed about the policies that adopted by the British East India Company in the 19th century for the different states. For example, he adopted a different policy for the Sindh and for the Balochistan and for the Punjab and other states that are including in the Indian subcontinent. And last we discussed about the War of Independence. First we discussed about why the War of Independence was
fought, reason behind, and after that we discussed about the consequences, and after we discussed about the results of the War of Independence. That's all we discussed in the previous lectures. Now we will move to the exercise. First we discussed about the long questions that we completed in the last lectures. First long question, describe the attack of Ahmad Shah Abdali against the India. हमने डिस्क्राइब करना है जो अटैक्स किए थे अहमद शाह अब्दाली ने अगेंस्ट इंडिया के. इन 1748 AD, आफ्टर डिफीटिंग द गवर्नर ऑफ पंजाब, जब अहमद शाह अब्दाली बिकेम अ किंग ऑफ अफ़गानिस्तान, जब वो अफ़गानिस्तान के किंग बनते हैं तो उसके बाद वो क्या करते हैं, जो कि हमने रीड आउट किया हुआ है और लास्ट लेक्चर्स में हमने डिस्कस भी किया हुआ बड़े अच्छे तरीके से, कि वो क्या करते हैं कि पंजाब के ऊपर वो अपनी जो कह लें कि जो भी जो रूलर था जब वो विन करता था तो वो अपनी जो एम्पायर है, अपनी जो रूलिंग पावर है उसको एक्सटेंड करने की कोशिश करता था. सेम अहमद शाह अब्दाली जो फॉलो दिस प्रिंसिपल एंड ही मार्च्ड अगेंस्ट द गवर्नर ऑफ पंजाब and attacked on the Punjab in 1748 AD. But Mughal Emperor Ahmad Shah defeated him near Sirhind. लेकिन उनको बहुत जल्द जो है वो डिफीट का सामना करना पड़ जाता है सिरहिंद पे. उसके बाद क्या होता है, बेसिकली जब डेथ होती है, द डेथ ऑफ द औरंगज़ेब, आफ्टर द डेथ ऑफ द औरंगज़ेब, मराठास एंड सिख्स जो हैं कम इन दी अप इन आर्म्स, मीन्स के ही these two nations became powerful against the Muslims. So that's why Ahmad Shah Abdali decided to curb to the Sikh and Marathas, and he attacked on the Marathas in 1761 AD, and the third battle of Panipat was fought. So that's all the situation in which Ahmad Shah Abdali attacked against the India. Okay जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनालाइज द बैटल ऑफ बक्सर, जो कि अभी हमने डिस्कस किया है कि एनालाइज हमने करना है कि बैटल ऑफ जो बक्सर हुई थी, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो थी ये बैटल थी इन दी हिस्ट्री ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. बैटल ऑफ बक्सर बेसिकली होती क्यों है, क्योंकि जो बंगाल के जो थे रूलर वो अपॉइंट किए हुए थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के. सो दैट्स वाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी demand that Mir Jafar fulfill all the demands from their side, but that's very difficult to fulfill all these demands of the British East India Company. So that's why the relationship between the British East India Company and Mir Jafar was in the becoming in the disturbance. And British East India Company dismissed the Mir Jafar and reappointed the appointed the Mir Qasim, son-in-law of the Mir Jafar, and after that Mir Qasim imposed some extra restrictions on the company officials. Who was company officials of the British East India Company. उस वक्त जो company officials जिनके ऊपर उन्होंने restrictions या taxes impose किए थे वो officials कौन से थे, वो British East India Company के थे. So इसलिए क्या हुआ कि जब उन्होंने वो जो टैक्स impose किए तो उससे क्या हुआ कि जो British East India Company वाले हैं वो इस चीज़ को अपनी insult समझने लग पड़े कि ये हमारी insult है कि इस तरह से हमने हमारा जो puppet ruler है वो हम पे ही टैक्स इम्पोज कर रहा है. सो दैट्स वाई ही डिसमिस्ड द मीर कासिम एंड रीअपॉइंटेड द मीर जाफ़र, और उन्होंने दोबारा जो मीर जाफ़र जो हैं उनको अपॉइंट कर लिया था गवर्नर ऑफ बंगाल. एंड दैट टाइम मीर कासिम डिसाइडेड टू लॉन्च एन अटैक अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. इसमें उन्होंने क्या किया, अलायंस बनाया शाह आलम II के साथ और नवाब फौद के साथ, और उन्होंने जो वार है वो डिक्लेयर कर दी थी अगेंस्ट द ब्रिटिश. उसके बाद इसके एंड भी क्या हुआ कि ये जो वार है वो बेसिकली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उन्होंने विन कर ली है. उसके बाद हमारे थर्ड क्वेश्चन है डिस्क्राइब द सिचुएशन ऑफ मुगल एम्पायर ड्यूरिंग द रीजन ऑफ द लास्ट टू मुगल एम्पर अकबर शाह II एंड बहादुर शाह जफ़र. इसमें बेसिकली हमने डिस्कस करना है कि कौन सी ऐसी सिचुएशन थी, जो कौन सी सिचुएशन बन गई हुई थी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, इन दो जो रूलर्स हैं उन्होंने किस तरह से क्या अपना जो रोल जो है वो प्ले किया था. सबसे पहले हमने डिस्कस करना है अकबर II को. ये बेसिकली लास्ट मुगल जो एम्परर हैं उनके फादर भी हैं, और इसके अलावा
बहादुर शाह ज़फ़र के जो हमारे लास्ट मुग़ल एम्परर हैं उनके फादर भी हैं, और ही इज़ आल्सो नोन एज़ द मिर्ज़ा अकबर। ये जो है मिर्ज़ा अकबर के नाम से भी जाने जाते थे। इनकी जो पावर्स हैं अगर वो देखा जाए तो वो जो है वो पर्टिकुलरली जो प्रैक्टिकली जो है वो कन्फाइंड हो चुकी हुई थी, लिमिटेड हो चुकी हुई थी। जो रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली है, जो उससे बाहर जो है वो उनकी कोई जो कह रहे हैं कि प्रैक्टिस में जो है उनकी पावर्स नहीं थी रह चुकी हुई, क्योंकि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने पूरी जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसके ऊपर अपना जो होल्ड है वो कायम कर लिया हुआ था। अगर देखा जाए वो इनके इरा में इनके जो ड्यूरेशन पीरियड था एज आ किंग, एज आ रूलर, तो उसमें बेसिकली जो कल्चरल जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लोरिश हुआ है। और इसके अलावा ये भी जो हैं वो पेंशनर रहे हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, और इन्होंने 31 ईयर्स जो है वो रूल किया है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर। सेकंड वन है बहादुर शाह ज़फ़र। ये भी जो है वो नॉमिनल एम्परर रहे हैं और पेंशनर भी रहे हैं ब्रिटिश के। जो पीपल थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के, उन्होंने उस वक्त इनको चूज़ किया था। ही चूज़ इन दैट सिचुएशन इन द टाइम ऑफ द वार ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857। in that situation he was incapable to handling all these situations, so that's why he was not a competent ruler. British defeated him and he sent him into the Rangona as a prisoner. He was more interested in poetry, so that's why he faced many problems in their ruling period. ओके जी, द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज दैट 4 क्वेश्चन जो है वो आप लोगों ने नहीं करना, उसके बाद आप लोगों ने 5 भी नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 6 है डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीपू सुल्तान एंड हिज बैटल विद द ब्रिटिश इन श्रीरंगपट्टनम इन 1799 AD। हमने बेसिकली डिस्क्राइब करना है कि ऑब्जेक्टिव्स क्या थे टीपू सुल्तान के, और उनकी जो लास्ट बैटल हुई थी ब्रिटिश के साथ श्रीरंगपट्टनम जो मुकाम था, ये एक एरिया है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, वहाँ ये वार हुई थी 1799 AD में। उसको बेसिकली हमने डिस्कस करना है। बेसिकली इससे पहले देखा जाए तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और टीपू सुल्तान और हैदर अली के दरमियान 4 जो है वो वार्स हुई थी। उनको हम मैसूर वार्स भी कहते हैं। तो इसमें लास्ट जो वार हुई थी वो 1799 में हुई थी। इस 1799 में जो वार हुई थी इसमें बेसिकली जो टीपू सुल्तान है उनको कम्प्लीटली तौर पर जो है वो डिफीट का सामना करना पड़ता है, वो हार जाते हैं और उनको जो है वो ऑनर जो है वो मार्टायर का लेते हैं, वो शहादत का रुतबा जो है वो हासिल कर लेते हैं। और इसके बाद जो मुस्लिम स्टेट थी मैसूर, उसकी जो इंडिपेंडेंस है वो कम्प्लीटली तौर पर जो है वो फिनिश हो जाती है। लास्ट मोमेंट पे जो जनरल थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो ऑफ़र करते हैं हैदर अली टीपू सुल्तान को कि आप जो हैं वो सरेंडर कर दें, लेकिन उनको जो है रिप्लाई करते हैं टीपू सुल्तान को कहते हैं कि टू लिव लाइक अ लाइन फॉर अ डे इज़ फॉर बेटर दैन टू लिव लाइक अ जैकल, कि एक शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साल ज़िंदगी से बेहतर है। ये उनको आंसर करते हैं और उसके बाद वो जो है वो मार्टायर का जो है वो जो रुतबा है वो हासिल करते हैं। और उसके बाद जो इस्लामिक स्टेट है मैसूर, उसकी जो इंडिपेंडेंस है वो कम्प्लीटली तौर पर जो है फिनिश हो जाती है और ब्रिटिश जो है वो टेक ओवर कर लेते हैं जो मैसूर जो मुस्लिम स्टेट्स हैं उनके ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द इनिशिएटेड बाय शाह वलीउल्लाह, सैयद अहमद शहीद एंड हाजी शरीयतुल्लाह। इसमें बेसिकली जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो डिफरेंट मूवमेंट स्टार्ट हुई थी उसको डिस्कस करना है। सबसे पहले हज़रत शाह वलीउल्लाह का है। हज़रत शाह वलीउल्लाह, यू बेटर नाउ दैट प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ही कन्विंस्ड द अहमद शाह अब्दाली टू अटैक अगेंस्ट द मराठास एंड बिकॉज ही नाउ दैट द मराठास एंड सिख आर द वर्स्ट एनिमीज़। ये सबसे ज़्यादा जो बड़े दुश्मन थे वो मुस्लिम्स के यही थे, जो कि इनको जो है वो फिनिश करना जो है वो बहुत ज़्यादा कंपल्सरी था। सो दैट्स वाई अहमद शाह अब्दाली अटैक्ड इन 1761 AD अगेंस्ट द मराठास। ही इनकरेज, इसके अलावा वो इनकरेज करते थे मुसलमानों को कि वो ज्वाइन करें इस्लामिक आर्मी
को और फाइट करें ओनली फॉर दी अल्लाह अलमाइटी। द सेकंड वन इज़ सैयद अहमद शहीद एंड जिहाद मूवमेंट। ये जिहाद मूवमेंट बेसिकली एट दैट मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन दैट टाइम when the Pashtun and Sikh become annoyed and become dangerous for the Muslims and for the Muslims community. He prepared an army for the faithful warriors. उन्होंने एक ऐसी आर्मी जो है वो प्रिपेयर की थी जो कि बहुत ज़्यादा जो कह लें कि बहुत ज़्यादा नेक और परहेजगार जो लोगों की जो है वो आर्मी प्रिपेयर की। और उसके बाद क्या है वो उन्होंने जो है वो इन्फोर्स किए इस्लामिक लॉज को और बैन कर दिया ऑल टाइप ऑफ इंटॉक्सिकेंट जो नशावर जो मंशियात हैं उनके ऊपर कम्प्लीटली तौर पर उन्होंने बैन कर दिया। उसके बाद लास्ट वन है हाजी शरीयतुल्लाह एंड फ़राज़ी मूवमेंट। फ़राज़ी मूवमेंट बेसिकली जो थी वो इसलिए स्टार्ट की थी कि मुस्लिम्स जो हैं वो जो बेसिक इस्लामिक प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करें, नमाज़ पढ़ें, प्रेयर करें 5 टाइम की, ज़कात अदा करें और इसके अलावा जो है हज वगैरह। तो फ़राज़ी मूवमेंट स्टार्टेड बेसिकली टू फॉलो द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द इस्लाम्स to encourage the Muslims to follow all these principles. The next question is that describe the main points of British policy in the Hyderabad, Deccan, Sindh, Balochistan, Punjab और at the end of the 19th century. इसमें बेसिकली हमने डिस्कस करना है कि जो ब्रिटिश जो पॉलिसी थी उन्होंने क्या क्या अडाप्ट की हैदराबाद दक्कन के लिए, सिंध के लिए, बलूचिस्तान, पंजाब एंड ओद के लिए। सबसे पहले हैदराबाद दक्कन, द ब्रिटिश जो हैं हैदराबाद बेसिकली रूल्ड बाय द नाजिमुल मुल्क। ही वाज अ फ्रेंड ऑफ द ब्रिटिश। ही refused to join the battle of the 1857, so that's why हैदराबाद दक्कन जो है वो बेसिकली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसके ऊपर कोई इंटरफेयर नहीं किया क्योंकि उन्होंने जो है ब्रिटिश के अगेंस्ट नाज़मुल मुल्क जो हैं जो उसके रूलर थे उन्होंने उसके अगेंस्ट जो है वो वार जो है वो करने से इनकार कर दिया था। उसके बाद सिंध था। सिंध में इन 1935 ब्रिटिश ने क्या पॉलिसी अडाप्ट की कि सिंध और बम्बई को जो है वो उन्होंने इकट्ठा कर दिया था, लेकिन 35 में ब्रिटिश जो है वो सेपरेटेड दी सिंध फ्राम दी बम्बे एंड इसके अलावा उन्होंने डिफरेंट किस्म की जो पॉलिसीज़ हैं वहाँ जो कह लें कि डेवलपमेंट पॉलिसीज़ जो हैं वो जो थी वो लाई थी। सबसे पहली चीज़ थी कि वो उन्होंने रेलवे स्टेशन जो है वो स्टैब्लिश किया था, प्रिंटिंग प्रेस सिस्टम जो है वो भी इंट्रोड्यूस किया था सिंध में। उसके बाद आता है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान को बेसिकली उन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, स्टेट बलूचिस्तान और ब्रिटिश बलूचिस्तान। ब्रिटिश जो है वो पर्पसली उन्होंने उस तरह से कोई डेवलपमेंट पॉलिसीज़ अडॉप्ट नहीं थी कि बलूचिस्तान के लिए, क्योंकि ये जब अटैक जब इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना होल्ड कायम किया था तो उस वक्त ये एक इंडिपेंडेंट स्टेट थी, तो उन्होंने उस वक्त इनके लिए कोई डेवलपमेंट पॉलिसीज़ उस तरह से नहीं थी अडॉप्ट की। उसके बाद पंजाब आफ्टर द वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो है उन्होंने बेसिकली पंजाब की जो गवर्नमेंट है उसको रन करने के लिए जो है वो न्यू पॉलिसीज़ न्यू जो लॉ है वो पास किए थे 1858 में। उसके बाद लास्ट वन होता है ओद। ब्रिटिश इंक्रीज देयर इंटरफेरेंस इन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स स्टेप बाय स्टेप। उन्होंने जो इंतज़ामी मामलात हैं उनमें जो इंटरफेरेंस है वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो इंक्रीज़ किए थे। इन 1856 में उन्होंने कम्प्लीटली तौर पर टेक ओवर कर लिया था जो होल स्टेट है ओद की उसको। ओके जी। Next we discussed about the short questions of this chapter. When Hazrat Shah Waliullah was died, Hazrat Shah Waliullah was died in 1762 AD. Next question, who was the last ruler of Mughal Empire? Tell me, who was the last Mughal Empire? Bahadur Shah. Zafar was the last ruler of Mughal Empire. Third question, what was the immediate reason of the War of Independence? जो War of Independence का जो reason था वो क्या था? Basically था कि Muslims and Hindus were annoyed by the interference of British in their
फ़िका मैटर्स, बेसिकली जो उनके जो कहते हैं कि जो रिलीजियस से जो रिलेटेड मैटर्स थे उनकी में जो ब्रिटिश थे उनका जो इंटरफेरेंस है वो इंक्रीज़ हो चुका था। एक रीज़न ये है। सेकंड रीज़न था बाय 1857 द ब्रिटिश रूल इस्टेब्लिश ओवर मोस्ट ऑफ इंडियन टेरिटरीज देयर डिसलाइक फॉर द ब्रिटिश एम्पेरिकल डोमिनेशन वाज अननेचुरल। द ब्रिटिश जो रूल जब इस्टेब्लिश हुआ था उन्होंने टेक ओवर किया था इंडियन टेरिटरीज़ का, तो बेसिकली वहाँ के जो लोग हैं उनको डिसलाइक करने लग पड़े थे क्योंकि वो उनके लिए बेसिकली उस तरह से पॉलिसीज़ जो हैं वो नहीं थे अडॉप्ट कर रहे। सो दैट्स वाई द एंगर वाज इमर्ज्ड in the heart of all the peoples of the Indian subcontinent. So that's why these are the two main reasons for the War of Independence. Next question, how Sikh rule was established in Punjab? Sikh rule जो है वो किस तरह से establish हुआ था? In the mid of the 18th century, when the central Mughal power was weakened, Sikhs started to consolidate themselves in Punjab and NW and KPK. कंसोलिडेट मीन्स होता है कि खुद को मजबूत करना, स्ट्रेंथन करना। जब बेसिकली जो मुग़ल एम्पायर थी उसके जो लास्ट रूलर्स थे वो जो उनके पास सेंट्रल पावर थी, मेन पावर उन्हीं के पास थी, जब वो वीकन होना शुरू हो गए, कमज़ोर होना शुरू हो गए, तो सिक्स स्टार्टेड टू स्ट्रेंथन देमसेल्फ इन द पंजाब। द नेक्स्ट वन, हाउ टीपू सुल्तान अर्न द ऑनर ऑफ मार्टाइडम। बेसिकली उन्होंने जो ये जो रुतबा है वो किस तरह से हासिल किया, किस तरह से उन्होंने हासिल किया? बिकॉज ऑफ सम ट्रेडर्स, जो कह लें कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उन्होंने कुछ ऑफिशियल मेंबर्स जो थे टीपू सुल्तान के उनको ख़रीद लिया हुआ था, तो इस तरह से जो गरदार होते हैं उनकी वजह से उन्होंने उनको डिफीट का सामना करना पड़ा और इस तरह से उन्होंने शहादत का जो रुतबा है वो हासिल किया था। ओके जी, नेक्स्ट there are the 4 options for each, tick the correct one. In 1761 Ahmad Shah Abdali was invaded India and defeated the Marathas. आप लोगों को सबको पता है कि 1761 में मराठास को जो है वो अहमद शाह अब्दाली ने डिफीट किया था। इन 1849 द ब्रिटिश डिफीटेड एंड द सिख एंड कैप्चर्ड। 1849 में ब्रिटिश जो है वो उन्होंने सिख को डिफीट करके किसको कैप्चर किया था? पंजाब को। इन 1764 विच बैटल वाज फॉट? बैटल ऑफ बक्सर वाज फॉट। हज़रत शाह वलीउल्लाह वाज बॉर्न इन 1703 इन दिल्ली। वार ऑफ इंडिपेंडेंस वाज फॉट इन 1857। Fill in the blanks according to the original text. 1835 the official status of Persian was abolished and English was adopted as a official language. इंग्लिश जो है वो अडॉप्ट कर ली थी एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज। रिप्लेस किसको किया था? पर्शियन लैंग्वेज को। सैयद अहमद शहीद वाज बॉर्न इन 1786 इन द इंडियन सिटी ऑफ डैश बरेली। द ग्रेट एंड ब्रेव जनरल ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टीपू सुल्तान डाइड इन 1799। रोहिलास बिलोंग टू डिफरेंट पश्तून्स ट्राइब्स ऑफ डैश अफगानिस्तान। द लास्ट वन, शाह वलीउल्लाह ट्रांसलेटेड द होली कुरान इनटू पर्शियन लैंग्वेज for the understanding of the Quran to the Muslims. Mark the right answers. Nawab of Oudh states Shujauddaulah had sided with the Mir Qasim in the battle of the Buxar. Tick. Ahmad Shah Abdali was a general of Sirajuddaulah. Cross. Bahadur Shah Zafar was a good poet and patronized number of poets. Tick. 1767 joined the forces of the British Marathas and Nazim of Hyderabad. Attack on Bengal. Tick. Period to British arrival in the subcontinent Balochistan was autonomous state. Yes, we discussed in the lecture. Balochistan was an autonomous state before the arrival of the British East India Company. Match the columns. Shah Waliullah was born in 1726 AD. Tipu Sultan was born in 1750 AD. Akbar Shah II was born in 1760 AD. Annexation of Punjab 1849। एनेक्सेशन में होते हैं कि जो टेक ओवर जो किया था, जो उसके ऊपर जो होल्ड जो ब्रिटिश ने वो कब कायम किया था, तो वो 1849 में किया था। कंक्लूजन ऑफ द वार ऑफ इंडिपेंडेंस, स्टार्ट कब हुई थी वार ऑफ इंडिपेंडेंस? 1857 में, और उसका जो कंक्लूड कब हुई थी? 1858 AD। दैट्स ऑल। सो नाउ द टेस्ट ऑफ द चैप्टर नंबर 5। First of all, you write your name and date and
and this is your test of chapter number 5. That's all. Thank you for your time and patience.